Hello everyone, students. In the previous lecture, we have gone through the important topic of this chapter, that is nothing but Le Chatelier's principle, and I think that we have discussed already the factors which are influencing the chemical equilibrium. क्या है principle? The principle of Le Chatelier's, through which we have gone in the last lecture. The principle states that when the system in the equilibrium is subjected to the change or external stress, we can say here, या simply आप यहाँ पे बोलो, if the factors like temperature, pressure, concentration and catalyst which are influencing the equilibrium, they are changed, then the system, it will respond in such a manner so that the effect of the change is minimized. If the system in the equilibrium is subjected to the change in the factors determining the equilibrium, then the system will respond in such a manner so that the effect of the change is minimized. इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी फैक्टर में कुछ चेंज करेंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर हो प्रेशर या फिर हो टेम्परेचर, तो क्या होगा, सिस्टम अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा कि जो भी कुछ इफेक्ट है चेंज का, इसको वो कर देगा मिनिमाइज. In the last lecture, as I told you, we have discussed about the effect of concentration. आज हम जानेंगे बाकी के तीन फैक्टर्स के बारे में. I mean, the first one is nothing but here effect of pressure. Students, you know that क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to N into R into T. This is known as ideal gas equation. अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं in the form of P, then we are getting here N. ये जो V है मैं इसको लिख आता हूं इस साइड में, तो हो जाएगा N upon V into R into T. At constant temperature, अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, तो ये जो है यहाँ पे R, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, ये तो पता है आपको, इट्स अ कांस्टेंट. सो दिस इक्वेशन इट विल नाउ बिकम P is equal to R into T into N by V. If you check it properly, तो R and T यहाँ पे है कांस्टेंट्स, राइट? तो we can write here P is directly proportional to N by V. So in this way we can write here, क्या है यहाँ पे N by V, where N is equal to number of moles upon V volume. इसको हम लोग बोलते हैं concentration, number of moles present per liter, number of moles present per decimeter cube. Okay, so in this way this term is nothing but known as a concentration. ठीक है, so this thing now it's very clear. Pressure depend करता है किसके ऊपर? On the concentration also. Now to discuss the effect of pressure, हम और एक बार वही इक्वेशन लेंगे जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में. क्या था वो इक्वेशन? N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जिसका कलर होता ही नहीं, ये होता है कलरलेस. इससे हमें मिलेगा यस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि है गैसियस स्टेट में, इसका होता है ब्राउन कलर. ऑब्वियसली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहां पे हम लोगों ने लिया ट्वाइस NO2. याद होगा आपको वो डायग्राम,
जिसमें N2O4 और NO2 के बीच में हमें मिला था इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस टू N2O4 dinitrogen tetraoxide which is colorless and NO2 nitrogen dioxide which is brown in color, they are taken in the same flask. मतलब यहाँ पे जो N2O4 जो है N2O4 और यहाँ पे कौन है दूसरा NO2, इनके बीच में हो जाएगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश. अभी ये है इक्विलिब्रियम सिस्टम. इस सिस्टम के अंदर अगर हमने कुछ बदलाव किए, प्रेशर में बदलाव किए, तो क्या होगा. देखिए, इफ यू चेक इट प्रॉपरली हियर, आपको दिखाई देगा द फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, आई मीन फॉर्मेशन, फॉरवर्ड मतलब यहां पे क्या होगा, N2O4 का कन्वर्जन होगा NO2 में. सो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस with the decrease in the number of molecules. If you check it for the forward reaction, 1 मोल से हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स, and in the reverse reaction 2 मोल से हमें मिल रहा है 1 मोल. So we can say here this reaction is with increase in the number of molecules. अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में, या फिर अगर हम बात यहाँ पे करेंगे ओवरऑल जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल रहे हैं सिस्टम में. ठीक है, अभी देखिए क्या होगा अगर हमने इस रिएक्शन में प्रेशर अप्लाई किया तो. सो इफ सपोज इफ प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम is increase. ठीक है, the moment at which the pressure is increased, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे है, जहां पे हमें N2O4 से क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा twice NO2. द मोमेंट वेन द प्रेशर इज इंक्रीज, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके ऊपर कोई यहां पे इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन यहां से आप देख सकते हो कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा. एंड यू नो दैट बाय द बॉयल्स लॉ आल्सो, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज वॉल्यूम इज डिक्रीज, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहां पे जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में कोई बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. लेकिन जो है रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो ये रिवर्स रिएक्शन जो है इसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा. तो क्या होगा, 2 moles of NO2 they will go to give here 1 mole of N2O4. तो जो यहां पे इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होगा ये होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. 2 मोल्स जो है ये कॉम्प्रेस होकर आपको 1 ही मोल देंगे N2O4 का. ऐसे में अगर जो फ्लास्क हमने लिया है इसमें क्या होगा, इसमें अभी N2O4 जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, इसीलिए आपको जो भी कलर मिलेगा वो कौन सा होगा, इट्स ऑलमोस्ट कलरलेस. प्रेशर इंक्रीज किया तो ये 2 मोल जो है ये कॉम्प्रेस होके क्या मिला आपको, 1 ही मोल मिलेगा N2O4 का. मतलब प्रेशर इंक्रीज होने के साथ में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ये हो जाएगा शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट विल डिक्रीज, इट विल ऑलमोस्ट कलरलेस. ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, तो यहां पे मैंने इधर लिखा है पॉइंट नंबर 2 में इंक्रीज इन प्रेशर. क्या लिखा है यहां पे, द कलर लाइटन्स टू ऑलमोस्ट कलरलेस. क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा LHS साइड में. आपको ज्यादा अमाउंट किसका मिलेगा, N2O4 का मिलेगा. N2O4 क्या है, कलरलेस है. दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द कलर क्या हो रहा है,
देखिए ये जो टेबल यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज नथिंग बट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर फॉर दिस रिएक्शन वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स। अभी देखिए क्या हुआ था यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट हुआ टू द लेफ्ट हैंड साइड विद द फीवर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स NO2 के, इससे आपको एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब जब रिएक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन में तो क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विल बी फीवर मतलब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी अगर हमने यहां पे क्या किया, एक प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज डिक्रीज। देखिए हमने प्रेशर डिक्रीज किया, चलो अभी यहां पे तो फिलहाल ये जो रिएक्शन दिया है ये है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। नाउ वी आर गिविंग सम स्ट्रेस। जो यहां पे स्ट्रेस है इसका मतलब बहुत सिंपल है, वी हैव टू चेंज द कंडीशन। क्या करना है हमें, यहां पे हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है। जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ट्वाइस NO2 जो है इसके ऊपर, मतलब जो 2 मोल्स थे ये 2 मोल्स अभी आपको N2O4 का 1 मोल नहीं देंगे, क्योंकि प्रेशर अभी यहाँ पे कम हो गया है। प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन पे रिएक्शन नहीं होगा। इस वक्त जो रिएक्शन होगा वो होगा अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो भी है यहाँ पे सिस्टम, दैट एक जो है कंटेनर, इसमें हमने दोनों भी मतलब दोनों इसमें है सब्सटेंसेस प्रेजेंट। अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रेशर कम करेंगे द इक्विलिब्रियम इट विल शिफ्ट नाउ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर अगर होता इंक्रीज तो वॉल्यूम कम होता, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 मोल है, ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। 1 मोल ऑफ N2O4 इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ NO2। तो यहाँ पे प्रेशर हमने कम किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। 1 वॉल्यूम ऑफ N2O4, अगर आपको बताया है, हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिया 1 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम ऑफ N2O4 gives 2 volumes of NO2। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। आई मीन द रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस, इट विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विल इंक्रीज। NO2 का जैसे ही यहां पे बदल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट यहां पे बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्राउन कलर। दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इट विल बी इंक्रीज। देखिए यहां पे मैंने लिखा है डिक्रीज इन प्रेशर, हमने यहां पे किया। कलर डार्कन्स, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, जो पहले कलरलेस था वो हो जाएगा डार्क ज्यादा, मतलब ब्राउन कलर आपको यहां पे ज्यादा अमाउंट पे मिलेगा। और ये जो है इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम में टू द राइट हैंड साइड। मतलब you will get here more molecules of NO2. Reaction will take place in the forward direction. Okay, so in this way we can discuss about the pressure. अभी एक बात यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे चेंज हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल H2 gaseous react with I2 gaseous, it gives twice HI। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या है, 1 mole of H2 combines with 1 mole of I2 to give 2 moles of HI। तो इस साइड में है 2 मोल्स और यहां पर भी कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, दोनों मोल्स, मतलब यहां पे मोल्स इक्वल है।
यहाँ पे कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। डेल्टा एन का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये जो रेशो यहाँ पे है डेल्टा एन का ऑलमोस्ट इधर 0 आएगा। ऐसे में अगर हमने इस रिएक्शन में प्रेशर दिया तो क्या इफेक्ट होगा? इसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ले लो या फिर ले लो रिवर्स रिएक्शन, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है। सो रिमेंबर दिस थिंग, इफ द रिएक्शन इज देयर with no change in the number of moles, number of molecules, for such a reactions we have to we know that there should be no effect of pressure. Okay, so ये है दो अलग अलग एग्जांपल्स। पहला वाला एग्जांपल अलग था जिसमें चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या है? देयर इज अ नो चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे रिएक्शन पर यस प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वी कैन से। ओके, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है या फिर होता है डिक्रीज, इसका केसी के ऊपर, केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। केसी विल नॉट चेंज with increase or decrease in the pressure, क्योंकि केसी में क्या होता है? there is a molar concentration। ठीक है, so note down all these things properly in your notebook। now let's discuss here the next factor, that is nothing but here effect of temperature, effect of temperature on the equilibrium। Students, for this let's take this example, PCl5 phosphorus pentachloride, which is in gaseous state, it will give PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, साथ ही साथ इसमें 92.5 किलो जूल्स इतना हीट यहाँ पे बाहर आएगा। दिस मच इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन दिस रिएक्शन। नाउ सी, you know that when the reaction in which heat is given out is known as an exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। exo मतलब out, endo मतलब in, thermic मतलब यहाँ पे क्या होता? heat। so the reaction in which heat is given out is known as exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। so we can say here PCl5 का जो 1 मोल है, 1 मोल of PCl5 it forms PCl3 Cl2 as well as this much amount of heat is given। फॉरवर्ड रिएक्शन जब भी यहाँ पे होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हीट इज रिलीज। ओके, with the formation of PCl3 and PCl2, with the formation of PCl3 and Cl2, this much amount of heat is also given out। so forward reaction is exothermic reaction। लेकिन जब यहाँ पे रिएक्शन होगा रिवर्स मैनर में, तो PCl3 और Cl2 ये हीट कंज्यूम करेंगे और आपको देंगे PCl5। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? इट इज टेकिंग प्लेस विद द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज हियर, forward reaction is nothing but exothermic reaction, and the reverse reaction is nothing but the endothermic reaction। ऐसे रिएक्शन में पता यहाँ पे क्या होगा? जब भी हम कभी इसको हीट देंगे पूरे इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा? जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो जो हम यहाँ पे देंगे एक्स्ट्रा वाला हीट, ये हीट गेन होगा किसके लिए? फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। and the reaction it will
proceed in the reverse manner. Okay, because whatever the heat energy we are giving, it will get changed into chemical energy. Okay, it's so simple. Now क्या होगा effect of temperature on the equilibrium constant? देखते हैं, चलिए. Now suppose for this the same example that is given in your book we will take here. Yes, carbon monoxide in a gaseous state will react with a hydrogen in a gaseous state. क्या हुआ इसमें? There is a formation of CH3OH also in a gaseous state. Okay, plus heat is also given out. यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं हीट अगर लिखते हैं इस इक्वेशन में तो वी हैव टू गिव हियर प्लस साइन, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, अभी ये एंथैल्पी का टर्म क्या है? एंथैल्पी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ईयर में इन द टॉपिक केमिकल थर्मोडायनामिक्स में, बट फिलहाल आपको बस इतना ही समझने का है कि यहाँ पे डेल्टा एच क्या है कि एंथैल्पी चेंज, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी एंड डेल्टा एच का यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगा यहाँ पे -90 किलो जूल्स पर मोल. एक मोल की बात कर रहा हूं यहाँ पे. यही हीट अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता तो मैं इधर लिखता +90 किलो जूल्स ओनली. सो इन टर्म्स अगर हमें लिखना होता है एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में तो हम इसको लिखते हैं माइनस में. ओके, चलिए ये हमें दिया है रिएक्शन. नाउ इन दिस रिएक्शन सपोज इफ यू अप्लाई हियर लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Kc के लिए इक्वेशन. सो Kc इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO gaseous into molar concentration of H2 gaseous. This is nothing but the equation for Kc. इसको हमने क्या किया है? लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है. ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन नाउ वी विल गेट हियर. ये है Kc के लिए इक्वेशन. Kc यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. चलिए अगर हमने इस रिएक्शन का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? When the temperature of this reaction is increased, what will happen? See, as I told you, when the temperature is given to this system, what will happen? Reverse reaction will proceed. Forward reaction पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है, I mean जो भी हम लोग यहाँ पे हीट बाहर से सप्लाई करेंगे, ये हीट मिथेनॉल गेन करेगा और क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम जो है इट विल गेट शिफ्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड. इससे क्या होगा? देयर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल. मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं इसको आप लोग. मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल दोनों एक ही है. एक है आईयूपीएसी नेम, एक है कॉमन नेम. ठीक है, तो मिथेनॉल जो है यहाँ पे इसका कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जो है हाइड्रोजन, इन दोनों का यहाँ पे बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. ये वैल्यू यहाँ पे कम हो रहा है और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है. इससे क्या इफेक्ट होगा? ऊपर का वैल्यू जैसे जैसे कम होता रहेगा, Kc का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ Kc इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या दिया है? इफ द टेम्परेचर in the Kelvin is expressed here at 298 Kelvin at room temperature, this is the value of Kc. हमने यहाँ पे क्या किया है? टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और लिखा है 500 केल्विन. देखिए फॉर दिस नाउ द वैल्यू ऑफ Kc इज डिक्रीज. पावर देखो कितना है इसका. ओके, एंड स्टिल if the temperature is increased up to 1000 Kelvin, then we are getting here 2.1 into 10 raised to 6. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? The value of Kc is going on decreasing. So when the temperature is increased, reverse reaction will proceed. In this case I am telling you specifically. In case of endothermic reaction में यहाँ पे क्या होगा? When the temperature is increased,
the equilibrium will shift in the left hand side. Heat is consumed by this methanol, that's why its concentration it will decrease. ये जो यहाँ पे मिथेनॉल है ये कंज्यूम हो जाएगा, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगा और इन दोनों का बढ़ जाएगा. ये कम हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ Kc it will decrease. So I will write here, as the temperature increases, then the reverse reaction, I mean the endothermic reaction gains heat. Okay, equilibrium is shifted in the left, or you can say on the left hand side, and the value of Kc decreases. This is a very very important part. देखिए Kc का वैल्यू वैसे कभी चेंज तो नहीं होता है. विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने देखा था, अभी देखा इफेक्ट ऑफ also concentration also. So with the increase or decrease in the concentration pressure, there is a no effect on the value of Kc. But now if you see here, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kc का वैल्यू यहाँ पे कम होगा. Okay, so this thing we have to remember. Please note down these things properly in your notebook. I hope you understand. यहाँ पे जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज. क्या होता है? ये होता है, नाउ सी, डेल्टा एच यहाँ पे होगा एंथैल्पी चेंज. इट इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस दैट ऑफ द रिएक्टेंट. एंथैल्पी इज नथिंग बट टोटल हीट कंटेंट. डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट. बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखने का है. ये हम जानेंगे डीप में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में. नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखा था इसमें आपको थोड़ा चेंज करना होगा. देखिए रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे आनी चाहिए ट्वाइस. ओके, नाउ द रिएक्शन विल बी बैलेंस. अगर हम इसे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो Kc का जो वैल्यू आपको मिलेगा इट विल बी इक्वल टू CH3OH in a gaseous state divided by CO in a gaseous state divided by molar concentration of H2 gaseous. It will be तो यहाँ पे जो पावर है ये आएगा इसका पावर 2. बस यहाँ पे आपको यही चेंज करना है. प्लीज मेक दिस करेक्शन. ओके, ये शायद रह गया था, ये पावर मेरे ख्याल से 2 का. प्लीज नोट डाउन दिस. Now the next factor is nothing but effect of catalyst. Catalyst is the substance which can increase the rate of the chemical reaction. Catalyst is a substance which can increase the rate of the chemical reaction. For example, इसे देखिए यहाँ पे, suppose this is CH3COOH. ये है इथेनोइक एसिड, ये है इसका IUPAC नेम. We can call it as acetic acid also. When it will react with ethanol, C2H5OH, ये है ethanol, or we can also call it as ethyl alcohol. So when they will react together, there is a formation of CH3CO and C2H5. ये है ethyl, और ये जो ग्रुप है इसका नाम है इथेनोएट, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज इथाइल एसीटेट. ये है एस्टर. यू नो एस्टर्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट, मोस्टली यूज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स, यू नो, आल्सो इन आइसक्रीम्स. तो ये होते हैं एस्टर्स. प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट. ये रिएक्शन अगर हमने किया इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट,
तो इट विल टेक सम डेज टू अटेन द इक्विलिब्रियम। हमें कुछ दिन लग जाएंगे इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसी रिएक्शन में यूज किया H प्लस आयंस को, और वी कैन से अगर हमने यहाँ पे यूज किया एसिडिक कंडीशन में, मीन्स प्रेजेंस ऑफ यस H प्लस आयन, देन दिस टाइम some days का टाइम हमें नहीं लगेगा, we will require only certain hours. So we can say that because of the catalyst there is increase in the rate of the reaction. However, catalyst जो है it will not affect the position of equilibrium as well as equilibrium composition. इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कैटलिस्ट का। कैसे करता है कैटलिस्ट ये काम? आई मीन हाउ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। लेट्स सी। ये सपोज हमने निकाला यहाँ पे ग्राफ, इस तरफ मैं निकालता हूँ एनर्जी, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस साइड ऑन द वाई एक्सिस, और यहाँ पे है समझो रिएक्शन का प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। सपोज दिस इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये देखिए कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये है डिफरेंस इन द एनर्जी। और रिएक्टेंट्स जब जाए मतलब फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो आपको यहाँ पे जो स्टेप मिलता है इंटरमीडिएट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, रिएक्टेंट को TS में से जाना ही पड़ेगा। TS क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है यहाँ पे। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट को नहीं यूज किया, लेकिन अगर हमें देखो रिएक्टेंट TS तक आएगा और TS मिलने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? You will get the product here. Okay, and the energy that is required to convert reactants into transition state is called as energy of activation. जो होता है कैटलिस्ट, वो मान लो यहाँ पे क्या करेगा? ये इधर इस एनर्जी को कम करेगा, मतलब आपको TS यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। नाउ यू कैन से विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, इससे क्या दिख रहा है कि क्या हुआ? देयर इज अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हमने यहाँ पे यूज किया कैटलिस्ट को, तो आपको क्या मिलेगी? जल्दी मिल जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट द प्रोडक्ट हियर faster. Rate of the reaction it will increase. So this is the reason. Okay, so catalyst increases the rate of chemical reaction by decreasing the energy of activation. However, catalyst does not appear in the expression of Kc. Kc के expression में नहीं आएगा, वो overall जो reaction होता है इसमें भी नहीं आता है। Catalyst will not appear in the overall reaction. Also, it will not appear in the expression of Kc. Okay, so this is about the catalyst. In this way, catalyst will bring down the energy of activation and the reaction takes place faster. Now, this is the table. Overall, अभी देखो आपने चारों जो फैक्टर्स है इनको डिस्कस किया है, तो ये टेबल भी दिया है आपके बुक में। क्या है? इफेक्ट ऑफ हियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? पोजीशन जो होता है इक्विलिब्रियम का, ये हो जाएगा चेंज। वैल्यू ऑफ Kc भी यहाँ पे होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं होता है चेंज। देखिए वैल्यू ऑफ Kc सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे? ओनली इन केस ऑफ
टेम्परेचर, बाकी वो कहाँ पे भी चेंज नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बदल रहा है ओनली इन केस ऑफ टेम्परेचर. सो हमने देखा था अभी इक्वेशन को, इन केस ऑफ प्रेशर हमने देखा कि अगर चेंजेस है नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तभी यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. जैसे N2O4 और जो है NO2, इसका जो एग्जांपल हमने देखा, लेकिन वही H2 plus I2 इट गिव्स ट्वाइस HI, इसके लिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था. तो ये यहाँ पे लिख आएगा changes if the reaction involves change in the number of gas molecules. Okay, if the gas molecules are same, then there is a no effect on the position of equilibrium. अगर है टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा, there is a change in the position of equilibrium. And in case of catalyst, as I told right now, there is a no change in the position of equilibrium also, and no change in the value of Kc also. Okay, so this is the summary overall we can say here. Please note down all these things. Let's see now here the last topic of the chapter, that is nothing but industrial application of the Lee Chatelain principle. इसमें हम जानेंगे हैबर्स प्रोसेस के बारे में, जो कि होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दे विल बिकम मोर efficient as well as profitable if we use here ideas of rate of chemical reaction as well as chemical equilibrium. कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे. Now see, in the Haber's process, you know that the reaction that takes place here, nitrogen gas reacts with a hydrogen gas, it gives ammonia gas. ठीक है, so N2 plus thrice H2 to give 2 moles of NH3, and this reaction, I mean forward reaction, is here exothermic reaction. I mean in this reaction heat is get released. Now this is the reaction at equilibrium supports. और ये है हैबर्स प्रोसेस का चार्ट. Now if you see this flow chart properly, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, it can be obtained from the air. You know that 78% होता है उसका यहाँ पे composition एयर में, तो वहाँ से मिलता है नाइट्रोजन. Hydrogen is obviously obtained from the natural gas. Okay, these two gases, I mean nitrogen gas and hydrogen gas, जिनका जो रेशो होना चाहिए, if you see the ratio 1:3, क्योंकि यहाँ पे है इसके 1 मोल, इसके 3 मोल्स, so their ratio by volume, 1 volume of nitrogen will combine with the 3 volume of hydrogen to give 2 volumes of ammonia. So the ratio 1:3 will be there. Okay, तो ये जो यहाँ पे रेशो रहेगा, इस रेशो में ये कंबाइन हो जाएंगे. Now if you check it properly, in this reaction the value of delta N क्या आएगा आपको पता है, N2 minus N1, number of moles of gaseous products कितने हैं यहाँ पे, ये है 2, minus number of moles of gaseous reactants कितने हैं, इसका 1 और इसके 3 हो गए 4. So this reaction will takes place by the decrease in the number of moles. Delta N का वैल्यू यहाँ पे आएगा -2. So this reaction takes place with the decrease in volume. इसका मतलब है as per the Boyle's law, this reaction should occur, yes, with increase in the pressure. ठीक है. Okay, now see, as the, if you see here with the point of view of that manufacturer, he always want to increase the production of ammonia. त्याला नेहमी काय पाहिजे असणार आहे, जास्त yield. yield म्हणजे काय, उत्पादन हवं असेल अमोनियाचं. and for that what he will do, तो अगर हमें चाहिए यहाँ पे अमोनिया का ज़्यादा yield, तो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, we have to increase the concentration of nitrogen and hydrogen. So the first factor, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे concentration की, तो क्या करना होगा उसके लिए, अगर उसे चाहिए ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया
प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए अगर अमोनिया का, तो नाइट्रोजन और जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इनका ज़्यादा होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, ताकि क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द राइट हैंड साइड एंड यू विल गेट हियर more yield of ammonia, production of ammonia will increase. So concentration of N2 and H2 should be increased so that here we can get here more yield of ammonia. चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की. तो आई विल राइट हियर इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Now see, this reaction takes place with the increase of pressure, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल्स को कॉम्प्रेस करना है. You can see there are 4 moles of reactant are there. इनको कॉम्प्रेस करके अगर हमें बनाने हैं 2 मोल्स, तो क्या करना होगा हमें, we have to increase the pressure. So this reaction will take place at high pressure, okay, but when the pressure will be high, what will happen here? Yes, जो भी यहाँ पे रहेगा कैटलिस्ट, ये अपना काम नहीं कर सकता है. That's why here optimum pressure for this reaction should be equal to 250 atmospheres. Okay, because at so much, so high pressure, catalyst cannot work properly, and that's why optimum pressure यहाँ पे क्या होना चाहिए, optimum pressure should be equal to 250. ठीक है. Then the next factor is here effect of temperature. If you check it properly students, forward reaction कैसे हो रहा है, forward reaction is exothermic reaction and the reverse reaction कैसे हो रहा है, reverse reaction is a endothermic reaction. और ऐसे में अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा फेवर्ड. जो भी यहाँ पे हम लोग देंगे टेम्परेचर, इसको यूज करके अमोनिया क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. दैट्स व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे अगर अमोनिया का यील्ड कम हो रहा है तो क्या फायदा. ओके, दैट्स व्हाई द रिएक्शन शुड टेक्स प्लेस एट अ लो टेम्परेचर. ओके, बट एट अ वेरी लो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, यस, द रिएक्शन, आई मीन इट विल नॉट टेक्स प्लेस प्रॉपरली. द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी लोअर. जो भी यहाँ पे होगा रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे जो होना चाहिए ये है 773 Kelvin will be the optimum temperature. Okay, because at a very low temperature rate of reaction will be lower, and that's why this is nothing but the optimum temperature we have to use. देखिए अभी ये जो आपके डायग्राम, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक है, एज पर दैट टेक्स्ट बुक आई हैड ड्रॉन द सेम डायग्राम हियर. तो यहाँ पे प्रेशर अलग मेंशन किया है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो. यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इफ दे आर आस्किंग फॉर द फ्लो चार्ट. तो देखिए ये है टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ, और ये है यहाँ पे प्रेशर, वो है 200 एटमॉस्फेयर. एंड रिमेंबर हियर आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट हियर. साथ ही साथ इसमें होता है मोलिब्डम. मोलिब्डम यहाँ पे क्या करेगा, इट विल हेल्प टू आयरन. सो मोलिब्डम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो व्हाट इज मीन बाय प्रमोटर. तो ये जो यहाँ पे रहेगा, ये इनका इस कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अमोनिया. ठीक है. दिस गैसेस जो यहाँ पे गैस हो गए वो काफी हॉट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमने यहाँ पे काफी इस्तेमाल किया होता है. सो दिस गैसेस दे मस्ट बी कूल्ड हियर, एंड अमोनिया जो है उसको कूल करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल ऑब्टेन इन द लिक्विड फॉर्म. लिक्विड अमोनिया आपको यहाँ से मिल जाएगा. और जो भी कुछ यहाँ पे है गैसेस जो कि है इन द फॉर्म ऑफ अनरिएक्टेड फॉर्म,
तो क्या हो जाएगा, इनको यहाँ पे वापस किया जाएगा रिसाइकल, रिसाइकलिंग। तो जो भी यहाँ पे अमोनिया है इसको बाहर निकाला जाएगा, और जो भी है गैसेस लाइक N2, सो यहाँ पे जो भी हो गए अनरिएक्टेड गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो बचे होंगे ये वापस रिसाइकल होकर इधर आ जाएंगे, एंड यू विल गेट द continuous production of ammonia. So in this way we can say about the Haber's process. यहाँ पे एक आयन यूज किया जाएगा एज अ कैटलिस्ट, और जो है मोलिब्डम इसे हेल्प करेगा. सो इन दिस वे मोलिब्डम विल एक्ट एज अ प्रमोटर. ये क्या होता है, आई टोल्ड यू इन द वन मोर लेक्चर ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज आई थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कैन यू टेल, अगर हमने इस सिस्टम में अमोनिया को ऐड किया तो क्या इफेक्ट आएगा इस रिएक्शन के ऊपर. सो नाउ इफ यू ऐड हियर अमोनिया इन दिस इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन. तो जो भी ऐड किया हुआ अमोनिया रहेगा उसका कम करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इट विल गेट शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना. एंड देन there is a decrease in the yield of ammonia also, and reverse reaction जो है ये ज़्यादा फेवर होगा. ये इतने बहुत सिंपल है, आप लोग अभी इसका आंसर दे सकते हो. ओके, आई थिंक नाउ दैट दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर.